मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू विद सेम चैप्टर नंबर 2। इसमें हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी टॉपिक जो है वो लास्ट वाला टॉपिक हमारा जो है वो शुरू किया हुआ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम इसके मीनिंग, फीचर्स के अलावा मेरिट्स और डीमेरिट्स कर चुके हैं। इसके अलावा हमने इसमें कल टॉपिक किया था, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। और उसी ही आंसर से हमने 3 क्वेश्चन जो थे वो तैयार किए थे। इफ एनीवन कैन टेल मी एनी वन डिफरेंस बिटवीन, 3-4 डिफरेंसेस मैंने बस लेने हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा कल वाला रिवाइज हो जाए। रेज हैंड प्लीज। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, एनीवन? यस, सिफरप्रीत। सिफरप्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ। The number of members in private company is minimum 2 to maximum 200, and in public company it is minimum 7 to infinite. Infinite. The maximum number, जो members का है, there is no limit on maximum number of members. And then is Ayush Chavla. Ayush, unmute yourself. Sir, the name of private company ends with private limited, whereas public company ends with only limited. Yes, good. The name ends with private limited in case of private company and only limited in case of public company. Gurparam Kaur Basra. In a private company, only 1 lakh rupees is required to start the business, and in a public company, it is required 5 lakh rupees to start the business. Yes, ठीक है बेटे, हमने इसको स्टार्ट अ बिजनेस नहीं कहना, हमने कहना पेड अप, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। वर्ड ये यूज करना है, minimum paid up share capital in case of a private company is rupees 1 lakh, and that is case of public company it is rupees 5 lakh. Then is Jaskaran. मुझे कोई याद नहीं रहता कि अनम्यूट मैंने करवाना है। हाँ जी, जसकरण। In private company, company can't invite general public to subscribe the share, and in public company it can invite the general public. Private company can't invite the public to subscribe for its shares, whereas public company can. Krish, last point है। Transfer of interest can't be easily transferred. Interest can't be easily transferred, and in public company interest can easily be transferred. It can easily be transferred. बाकी भी पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, बीच में जिन्होंने हैंड रेस किए हों। हम नेक्स्ट टॉपिक, इस बार जस्ट अ रीकैप बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर। कल हमने क्या किया था? कल हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज करी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी, और हमने प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का डिफरेंस भी साथ में किया, और हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया हमने डिफरेंसेस में से ही, डिफरेंस ही हमने जो थे वो पढ़े, उसी में से हमारे 2 क्वेश्चन और बन जाने के, डिफरेंस ही बन गया, एक इसका मीनिंग बन जाना है, और एक जो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो बनना है, दैट इज प्रिविलेज इज अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। प्रिविलेज इज अवेलेबल मीन्स कहाँ जो प्राइवेट कंपनी है, इट इज ईजियर टू स्टार्ट एंड रन। Like a private company can be started with minimum paid up share capital of rupees 1 lakh, whereas in public company rupees 5 lakh are required. Private company can be managed by 2 persons only, minimum number of members, whereas 7 members are required. In private company, number of directors are 2, their number of directors are 3. One more point I want to know from you about the certificates. That point is also there in the difference, and that point is also there in the privileges. Anyone can tell me that difference on the basis of certificate? Anyone else? Yes, Yadvi. Yadvi, unmute yourself. Incorporation is required in private, and certificate of commencement and incorporation both are required in public. Yes, certificate, there are 2 certificates. One is certificate of incorporation and second is certificate of commencement of business. For a private company, only first certificate is required, that is certificate of incorporation, whereas in a case of public company, both the certificates are required. पहले मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बाद में मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
प्राइवेट कंपनी एक सर्टिफिकेट लेने के बाद शुरू कर सकती है बिजनेस अपना. There is no need to collect certificate of commencement of business by the private company, whereas the public company has to get both the certificates. यहाँ भी privilege है. ये privileges है, हम कल भी यही बात कर रहे थे. चाहे privilege आए आपको, चाहे difference आए, आंसर सेम है, प्रेजेंटेशन का फर्क है. कंपैरिजन आता है, डिफरेंस आता है गिवन कंपैरेटिव फॉर्म, 3 टॉपिक्स बना के, 3 कॉलम्स बना के. अगर यही प्रिविलेज आ जाए तो उसको पॉइंट्स में दे दो. लिखना डिफरेंस टाइप ही है, लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म नहीं दिखानी है. थोड़ा सा प्रेजेंटेशन उसका जो है फर्क रहेगा. लैंग्वेज आपको थोड़ी सी आपको मोल्ड करनी पड़ेगी उसके हिसाब से. डिफरेंस नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली डिफरेंस ही है जो हम प्रिविलेजेस में लिखेंगे. मीन्स कहाँ कहाँ जो है प्राइवेट कंपनी थोड़ी सी ईजी है रन करनी और स्टार्ट करनी. ठीक. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मींस कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है. What are the various steps, what are the various stages by which the company is formed. तो यहाँ टॉपिक हमारा बनता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की स्टेजेस का बनता है. स्टेजेस of formation of a company. What are the different steps which are to be taken if suppose anyone wants to form a company? उसकी हम बात करेंगे. There are 4 stages. Number 1 stage is promotion. Promotion. This is not that promotion जो हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं. ये उस प्रमोशन की बात नहीं हो रही है. ये कंपनी को स्टार्टिंग में प्रमोट करने की बात हो रही है. ठीक. फर्स्ट स्टेज, इसके बारे में लिख लीजिए पहले. 4 स्टेजेस की यहाँ स्पेस छोड़ लेना और साथ साथ लिखेंगे इसको. 4 के बाद आप फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए फॉर्मेशन में प्रमोशन. प्रमोशन, राइट. इट बिगिंस व्हेन समवन आइडेंटिफाइज some idea regarding any business which can be undertaken. It involves a business opportunity. And giving practical shape to this idea. अगर आपको कुछ ना चले पता, आप बीच में हैंड रेस करके पूछ लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ. And the person who undertakes this responsibility is known as promoter. 1 मार्कर बन जाता है प्रमोटर. ठीक है. प्रमोशन क्या है? प्रमोशन है वो स्टेज जहां से हमारा आइडिया जो है हमारे माइंड में कंसीव कर गया, जहां से आइडिया हमारे माइंड में आ गया कि ये वाला हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे. वहां से प्रमोशन जो है, जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज फॉर्मेशन की, वो स्टार्ट हो जाती है. As soon as idea comes in the mind, as soon as the idea is conceived by the person कि मैंने ये वाला बिजनेस करना है, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स. उसको प्रैक्टिकल शेप देना, वो बिजनेस करना है, उसके लिए मेरे रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, मैंने वो देखना है प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी या नहीं होगी, पैसा कितना चाहिए, कंपनी का नाम क्या होगा, वेरियस थिंग्स आर देयर. वो सारी चीजें जो हैं प्रमोशन में ही आती है. ये भी हम बाद में पढ़ेंगे इसको भी, प्रमोशन में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, क्या क्या स्टेज जो है वो स्टेप्स आते हैं. अदरवाइज अगर सिंपल सी बात करें, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, किसी एक काम का मैं कहता हूँ मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ. सपोज मैंने एक मोबाइल कंपनी खोली, मैं ये कह देता हूँ मैंने मोबाइल कंपनी खोली है सपोज, है ना. ये कंपनी मैंने कहाँ खोलनी है, मेरे को उसकी प्लेस चाहिए. ये कंपनी का नाम क्या होगा, मैंने नाम रखना है. मैं सपोज ABC मोबाइल रख दूँ, ABC मोबाइल कंपनी. मैं ये रख सकता हूँ ABC टेलीकॉम, मैं ऐसा कुछ नाम रख सकता हूँ. बट दिस नेम शुड नॉट मैच विद द any other name which is there in the industry. I can't name it Airtel, I can't name it
से BSNL और जियो और ऑल दैट और वोडाफोन, मैं वो नेम नहीं रख पाऊंगा। अलग मेरे को नेम रखना पड़ेगा कि मेरे को रिसोर्सेज कौन कौन चाहिए, मेरे को एम्प्लॉइज कैसे चाहिए, मेरे को बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जो मेरे माइंड में आती है प्रमोशन स्टेज पे कि मैंने क्या क्या करना है और मैंने कहाँ कहाँ करना है। जैसे ही माइंड में आइडिया आया कि मैंने ये वाला काम शुरू करना है, वहां से प्रमोशन स्टेज स्टार्ट हो गई। एंड इफ सपोज आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग द फर्म, प्रमोटिंग द कंपनी, आई एम द प्रमोटर। Promoter or promoters are the person who take the responsibility of promoting the firm, promoting the company. This is the promotion stage. Fine. प्रमोशन स्टेज में एक हम और पॉइंट कर सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था। प्रमोशन करते वक्त हमें ये भी देखना है कि वेदर दैट आइडिया इज फ्रूटफुल, यूजफुल, प्रॉफिटेबल और नॉट। मोबाइल कंपनी मैंने कह तो दिया, मैंने मोबाइल कंपनी खोलनी है, जब मैंने मोबाइल लिखा होगा यहाँ पे आपके माइंड में भी आया होगा ये क्या काम कर रहे हैं सर, है ना। बिकॉज मोबाइल कंपनी में आजकल इतना बेनिफिट ही नहीं है, फायदा ही नहीं है मोबाइल कंपनी खोलने में, कंपटीशन ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम है। जब भी कंपटीशन ज्यादा होगा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अगर यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो मैं क्यों करूंगा काम। मैं यहाँ प्रैक्टिकली देखूंगा, फिजिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वेदर आई विल बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट्स और नॉट। अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी वहां तभी तो बिजनेस में स्टार्ट करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं स्टार्ट। प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को देखनी पड़ेगी, मेरे को फिर देखना पड़ेगा पैसा कितना लगता है। ये हम पढ़ेंगे बाद में, स्टेजेस आएंगी प्रमोशन में, वहां हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल से ले रहा हूँ। सपोज एक मैंने सोच लिया कि मैंने एक लैंड लेके ना, बड़ी सारी पीस ऑफ लैंड लेके ना, काफी बड़ा सारा, मैंने एक लैंड डेवलपर बन जाना है। मैंने वो लैंड डेवलप करनी, वहां मैंने कॉलोनी काटनी है, कॉलोनी काट के मैंने और वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के और मैंने रेजिडेंशियल एरिया बना के मैंने वो सेल करनी है। मैंने वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो बना देनी है, मैंने वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देना है, मैंने वहाँ पे स्विमिंग पूल बना देना है, मैंने यहाँ पार्किंग बना देनी है, यहाँ से मैंने एंट्रेंस बना देनी है। ऐसे करके बच्चों के खेलने के लिए हो जाएगा, कुछ वैसे सोसाइटीज वगैरह, क्लब्स वगैरह बन जाएंगे। ये मैंने सोच लिया। बट द फैक्ट इज कि इसमें कितना पैसा लगना है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पे पैसा वो वाला कहीं से, इतना पैसा कहीं से मैं अरेंज कर पाऊंगा, मैं कर ही नहीं सकता इतना पैसा अरेंज। पहले तो मैंने लैंड परचेज करनी, फिर मैंने लैंड को डेवलप करना, आगे उस पर बनानी है, मैंने बिल्डिंग्स बनानी है, फिर उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट रहेंगी मैंने वो पूरी करनी है। नो डाउट पैसा बड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है। 10 रुपए की ली हुई चीज 50 में बिक सकती है, 40 में बिक सकती है, रेगुलर इनकम भी हो सकती है अगर मैं रेंट पे दे दूँ तो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह। बट द फैक्ट इज कि पहले मेरे को पैसा लगाना कितना पड़ेगा, पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो पैसा ही नहीं है तो फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी चाहे हो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। प्रमोशन स्टेज में जो है वो सारा कुछ हम यही देखेंगे कि क्या वो बिजनेस हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है और कहाँ हो सकता है और फर्म का नाम वगैरह क्या होगा। ऑल दीज थिंग्स आर डेल्ट विद इन द स्टेज ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन में हम उसको डील करते हैं। एंड इट स्टार्ट्स, जैसे मैंने पहले कहा, इट स्टार्ट्स व्हेन द idea is conceived by the promoter in his mind. This is about first stage, that is promotion. The second stage is incorporation. Incorporation, देखिए इसके बारे में। In this stage, the application is filed with the registrar of companies, with the registrar of companies. It is not register, it is the office of registrar of companies of that state, in which head office of the company will be established. In which head office of the company will be established. Head office means registered office, जो मेन ऑफिस कंपनी का है, जहाँ पे कंपनी का मेन ऑफिस होगा। हर एक स्टेट में एक ऑफिस होता है रजिस्ट्रार का, हर एक स्टेट में। उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हमें एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि हमारे माइंड में आइडिया आ चुका है, प्रमोशन हमारी हो गई है,
सोच लिया है हमें नाम वगैरह क्या रखना है, सोचा है अभी, है ना, प्रैक्टिकली भी देख लिया कि फायदा भी हो जाएगा, पैसा वगैरह भी है। Then we apply for the certificate of incorporation and we apply that in the registrar office of that state जहाँ पे कंपनी का मेन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस रहेगा, वहाँ पे हम जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। ब्रांचेस कैन बी एनीवेयर, नंबर ऑफ प्लेसेस ब्रांचेस कैन बी देयर, बट अप्लाई कहाँ करना है, जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस रहेगा। एंड एट दिस स्टेज ओनली द कंपनी गेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसकी हम कल भी बात कर रहे थे, हम आज भी बात कर रहे थे। एट दिस स्टेज ओनली द कंपनी गेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने कल भी ये बात करी थी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज, इट इज सेम एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ पर्सन। वहां पे लिखा जाता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में, हमारे वाले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होता है ये फलाना बंदे का नाम, फलानी डेट को इसका बर्थ हुआ, इस टाइम पे इसका बर्थ हुआ, ये इसकी मदर का नेम है, ये इसके फादर का नेम है, ये ग्रैंडफादर का नेम, सब वहां पे लिखा होता है, एड्रेस वगैरह वहां पे लिखा होता है। सिमिलरली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ये कंपनी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जहाँ कंपनी का नाम, कंपनी के प्रमोटर्स का नाम, कंपनी की प्लेस, कंपनी की डेट व्हेन इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, व्हेन इट टुक बर्थ, वो लिखी होती है। एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो है वो उसकी हो जाती है। एंड इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए कंपनी को वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर देयर, जो कि फाइल करने पड़ते हैं। वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर देयर, देन इसकी फीस वगैरह होती है वो पे करनी पड़ती है। आफ्टर दैट जो है वो इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग द फर्म, कंपनी जब एप्लीकेशन लगाती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, इसको वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर देयर। आप एक तो डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हम पढ़ेंगे बाद में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक आर्टिकल, एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को सबमिट करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOA बोल देते हैं, MOA। देन एक डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार। देन एक डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी को फाइल करना पड़ता है, प्लस कंपनी को इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स है, प्लस कंपनी को फीस देनी पड़ती है, प्लस कंपनी को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, अदर फॉर्मेलिटीज आर देयर। जब कंपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह देने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद विद द रजिस्ट्रार, एंड व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफिस फाइंड्स कि एवरीथिंग इज ओके, देन द रजिस्ट्रार इश्यूज certificate of incorporation, means the company has taken birth, company has got the certificate of incorporation. This is about second stage, that is incorporation. Then third stage is capital subscription. Capital subscription. Now I say one line and you have to prove that line wrong. मैं एक लाइन बोलूंगा, आप लोगों ने उस लाइन को रॉन्ग प्रूव करना है, ठीक है। हमने वो पॉइंट डिस्कस किया। एट दिस स्टेज द कंपनी सब्सक्राइब्स फॉर द कैपिटल, सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, subscribe for the investment. The company subscribes for means company arranges for, company invites, अगर मैं और सिंपल बोलूँ, at this stage a company invites public, general public to subscribe for shares. Prove me wrong here. Anyone, one child is there. I am saying a company invites general public here in this stage to subscribe for its shares. Prove me wrong. Sipat. Yes. सर स्टार्टिंग में तो जो मतलब ओनर्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उन्हें पहले कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब कंपनी की कोई गुडविल क्रिएट हो जाती है, उसकी रेपुटेशन बन जाती है, फिर वो सब्सक्राइबर्स को बुलाती है कि वो उसके पास आके पैसा इन्वेस्ट करें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ये है कि इसके बिना भी तो कंपनी पैसा अरेंज कर ही सकती है। सपोज
पहले ही कोई कंपनी चल रही है, उसने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी, छोटी कंपनी एक और खोल ली, रेपुटेशन तो ऑलरेडी है उसके पास, कंपनी के पास। ये चीज मैंने बताई हुई है। अगर आप थोड़ा सोचो, हमने कल भी यही बात करी थी, हमने आज भी करी है बात, मैं थोड़ा उस बात को खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। आई वांट कि आप लोग समझ जाओ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना, इससे ज्यादा मैंने बता दिया, फिर आंसर ही आ जाएगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस पॉइंट को। अगर मैंने ज्यादा बता दिया ना, इसके पास सीधा आंसर ही है और कुछ नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ लाइन, एट दिस स्टेज नंबर 3, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, अ कंपनी इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। या आपने इसको रॉन्ग प्रूव करना, या आप इसको वैसे कुछ लगता है कि इनकम्प्लीट है तो ठीक कर देना है। जसकरण सर कोई भी कंपनी है, यहाँ प्राइवेट है या पब्लिक है, उनकी मिनिमम जो शेयर है, जैसे प्राइवेट की 1 लाख है और पब्लिक की 5 लाख है सर, वो उन्होंने लोगों से नहीं ली है, उन्होंने खुद अरेंज की है, तो वो इनवाइट तो किसी को कर ही नहीं रहे। अगर वो ना मतलब वो खुद से ना अरेंज करे, लोगों से कर ले, फिर कर सकते हैं क्या? सर अगर नई कंपनी है तो वो कैसे अरेंज करेगी लोगों? कर सकती नई कंपनी। अगर आज रिलायंस वाले एक नई कंपनी खोल, टाटा मोटर वाले कोई नई कंपनी खोल, लोग हंस के पैसे लगाएंगे उसमें। पता है कि उनकी जो मैनेजमेंट बैठी है बैक पे, वही मैनेजमेंट बैठी हुई नहीं। नई कंपनी अगर मैनेजमेंट पुरानी हो तो नई कंपनी क्यों नहीं पैसा लगाएगा, हर कोई पैसा लगाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप समझ जाओ इस बात को तो, फर्स्ट स्टेज वाज प्रमोशन, सेकंड स्टेज वाज इनकॉर्पोरेशन। एट दिस स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, a company invites the general public to subscribe for its shares। मैं आपको हल्का सा हिंट और दे रहा हूँ, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस थोड़ा सा अगर आपको आ जाइए, आपको पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस अगर उस साइड से आप सोच सको तो, आई एम सेइंग a company invites general public to subscribe for its shares। यस, जस करना जी। हाँ जी सर जो पब्लिक कंपनी है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि हमारी कंपनी में शेयर करो। बिल्कुल ठीक है बेटा आपकी बात। इसको फिर मेरी लाइन को ठीक कर दो, जो मैंने बोला था, मैंने कहा था प्रूव भी रॉन्ग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। I said a company invites general public to subscribe for its shares। जसकरण से ठीक करना फिर। सर सब्सक्राइब इट्स शेयर मतलब कि वो कंपनी चाहती है कि लोग हमारे पैसा इन्वेस्ट कर दें। हाँ जी इसको, हाँ ये ठीक है, आपकी बात बिल्कुल 95% आपका आंसर आ गया है। अब मेरी एक लाइन है जो मैंने बोली, एट दिस स्टेज a company invites general public to subscribe for its shares। इसको ठीक करना है जसकरण। A company invites general public to subscribe for its shares। सिफत सर यहाँ पे कंपनी नहीं आएगा, प्राइवेट सॉरी पब्लिक कंपनी आएगा। बिल्कुल ठीक है सिफत आंसर। दिस इज द आंसर। इट इज नॉट अ कंपनी। इफ विल राइट कंपनी देन आंसर विल बी वेग, है ना। आंसर वो ठीक नहीं, इनकम्प्लीट लगेगा, बिकॉज हमें यहाँ लगाना पड़ेगा एक पब्लिक कंपनी, नॉट प्राइवेट कंपनी, नॉट कंपनी, पब्लिक कंपनी। बिकॉज हमें यहाँ क्लियर करना पड़ेगा एवरी कंपनी कांट इनवाइट दैट फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ओनली पब्लिक कंपनी कैन डू। एंड सेकेंडली जो यहाँ हम लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, एट दिस स्टेज पब्लिक कंपनी कैन invite the general public to subscribe for its shares। And secondly, when certificate of incorporation is obtained here, it is obtained here, the private company can start the business। ऐसे ही था, a private company can start the business after getting certificate of incorporation, whereas public company starts the business after getting certificate of commencement of business also। तो जो ये स्टेज है, यहाँ पे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल ही गया, और कंपनी जो प्राइवेट है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेज जो है, दोनों स्टेजेस आर नॉट मेंट फॉर प्राइवेट कंपनी।
आर मेंट फॉर पब्लिक कंपनी ओनली, बिकॉज कंपनी की पहली 2 स्टेजेस ही हैं प्राइवेट कंपनी की जो उसके काम की हैं, इसके बाद तो वो स्टार्ट ही कर रही है कंपनी, है ना। एंड मोर ओवर हमने डिफरेंस एक और पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी जो है वो इट कांट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, तो दैट इज व्हाई वहां से भी यही पॉइंट बनता है कि ये स्टेज जो है इस कंपनी के लिए नहीं बनी हुई है। इसके बाद जो है वो आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये हम लिखते हैं अभी कैपिटल वाला पॉइंट। यहाँ पे जाके कंपनी को मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वी कैन सी कि कंपनी ने पब्लिक कंपनी ने यहाँ जाके बिजनेस स्टार्ट करना है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट, प्राइवेट कंपनी ने यहाँ स्टार्ट कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली 2 स्टेजेस हैं वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, या हम ये कहें प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ पहली 2 स्टेजेस ही है। पब्लिक कंपनी के लिए चारों स्टेजेस है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। फाइन, तो पहले आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन का लिख लीजिए, लिखिए इन दिस स्टेज पब्लिक कंपनी can raise the required amount of funds. Public company can raise the required amount of funds from the general public For this, the company has to invite general public by issuing the prospectus and undergoing other formalities. Fine. Now, what is this prospectus or what is the meaning of issuing the prospectus? जैसे आप स्कूल में अगर एडमिशन लेने जाओ या किसी आगे आप 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, आप वहां पे करवाओगे रजिस्ट्रेशन, आपको एक वो डॉक्यूमेंट देते हैं। वो डॉक्यूमेंट इट मे बी इन फॉर्म ऑफ 1 or 2 pages, इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ नोटबुक, नोटबुक, दैट इज अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में, जैसे हम अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो वहाँ स्कूल कॉलेज के बारे में बताया होता है, कब स्टार्ट हुआ था, उनकी मैनेजमेंट का मैसेज, प्रिंसिपल का मैसेज, बच्चों की पिक्चर्स लगी होती हैं, जो कंपटीशन हुए, जो एक्टिविटीज हुई, टीचर्स के नेम वगैरह, उनकी डेजिग्नेशन वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी होती है। देन आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं वो लिखे होते हैं। प्रोस्पेक्टस सेम ही कंपनी का है, इसमें कंपनी ने भी यही बताना होता है कि हम कब स्टार्ट हुए थे, हम कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हमने लास्ट ईयर क्या किया, कितना प्रॉफिट कमाया, ये हमारे एम्प्लॉइज हैं, यहाँ हमारा बिजनेस है, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, ये बताना, सो दैट कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आगे पैसा इन्वेस्ट करें। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट जो कि दिखाया जाता है बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स कि आप लोग पैसा हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो कंपनी जो है इट हैज टू इनवाइट द पब्लिक बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस एंड अंडरगोइंग अदर फॉर्मेलिटीज भी है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, ये भी हम पढ़ेंगे। सेबी, इसकी अप्रूवल लेनी, जब कंपनी ने अपने शेयर्स वगैरह सब्सक्राइब करवाने हैं, जनरल पब्लिक से पैसा लेना है, उसको इन्वेस्ट करना है, द कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम सेबी। सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज मीन शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह जो कंपनी अपने ऑफर करती है सेल के लिए, उसको जो एक्सचेंज करती है, उसके लिए सेबी की अप्रूवल लेना जो है जरूरी होता है। इसकी अप्रूवल के बिना कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा अरेंज नहीं करवा सकती, बिल्कुल नहीं करवा सकती, ठीक है। सो ये है फ्यू फॉर्मेलिटीज जो हम इसको बाद में जो है बाकी वो भी करेंगे। यहाँ हिंट सिर्फ मैं हल्का सा दे रहा हूँ, क्योंकि ये चारों स्टेजेस जो है ना, ये चारों स्टेजेस अपने आप में पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाए तो आपने कम लिखना है, जितना मैं लिखवा रहा हूँ उसमें कुछ आपने ऐड करना है, अभी वो लिखना है। अगर ये प्रमोशन स्टेज अकेली आ गई 6 मार्क्स में, या इनफॉर्मेशन आ गई,
या कोई और स्टेज कोई भी आ गई, तो उसको आपने फिर आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। और अकेली अकेली स्टेज को हम कल स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना इसको डिटेल में। अभी हम लास्ट स्टेज कर रहे हैं, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लास्ट नंबर इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लिखिए, दिस इज द फाइनल स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फाइनल स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। In this stage, the public company applies for the certificate of commencement of business. Public company applies for the certificate of commencement of business. See, मैंने फिर वही वर्ड यूज किया है, मैंने ये नहीं कहा कंपनी अप्लाइज फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, मैंने कहा पब्लिक कंपनी अप्लाइज, बिकॉज प्राइवेट कंपनी को इस सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। For the commencement of business, this certificate is an evidence that the company is entitled to start the business. A company is entitled to start a business. ठीक है, ये चारों स्टेजेस जो हैं ये आपकी स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है। अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन ही आ गया एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, तो यही चारों बतानी है आपने। जितना आपने यही लिखा हुआ है वही आपने जो है वो सिफत, व्हाट डू यू वांट टू से, सिफत रेज हैंड प्लीज, वेयर आर यू, सिफत हैंड रेज करना बेटा। यस, बोलिए बच्चे। सर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दो। लिखिए बेटा, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। In this stage, the public company applies for the certificate of commencement of business, and this certificate is an evidence that the company can start the business, can do the business. Fine. अगर आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाता है स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, तो जो मैंने आपको लिखवाया है वो अभी वो मैटर जो है मैंने सिर्फ सेंट्रल आइडिया से लिखवाया है, आपको 2-2 3-3 लाइन वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसमें आपने अपने वाला मैटर भी साथ में ऐड करना जो आप बुक से पढ़ोगे, सिर्फ इतना ही लिखोगे आप। अगर आपको अलग से ही आ गया एक्सप्लेन स्टेज ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी सपोज, तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मार्क्स के हिसाब से चलना, हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी पूछी गई है जितने मार्क्स की है उतना ही लिखा जाएगा। कल को हम ये चारों स्टेजेस को अलग अलग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज वाले लेक्चर में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज।